ہے, بیٹی نے بڑی اچھی بات کی ایمان کے تعلق سے کہ ہم ہاتھ رکھ کر ہی جو ہے وہ دعا کروائیں تو ہمیں شفا ملتی ہے, اور وہ بھی کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی, تو وہ دوست جو ہے وہ کسی اور پر دیتے ہیں. تو اس جگہ پر بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے خدا تو ہمارے ساتھ وفادار ہے, خدا تو صبح سویرے اٹھتا ہے. کیا ہم اٹھتے ہیں؟ سوال یہ ہے. خدا تو وفاداری سے عدن سے لے کر اب تک خدا نے اپنا وہی یکساں خدا ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے, جو ہماری فکر کرتا ہے, جو ہمارے ساتھ وفادار ہے. سوچنا یہ ہے, فکر لمحہ یہ ہے, کیا ہمارے اندر جو خدا محبت رکھتا ہے ہمارے اندر اس کی وہ تڑپ ہے؟ وہ جو محبت ہم سے کرتا ہے, صبح سویرے اٹھتا ہے تاکہ میرے بندے جو میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں میں ان کو برکت دوں. وہ تو صبح سویرے اٹھتا ہے, لیکن ہمارے اندر جو آج کل ہم اپنے اپنی روشوں میں کھوئے ہوئے ہیں, خدا تو وفاداری کر رہا ہے, وہ آج بھی ویسا ہی ہے. آج ہم نے اپنی اپنی کلیسیاں جو اپنے دل کی, میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے دل کی کلیسیا جو خدا کا بدن ہے, جو ہمارا بدن ہے, مسیح کی کلیسیا ہے یہ, اور اس کلیسیا کو ہم کیسے کیسے برباد کر رہے ہیں, کیسے کیسے ڈھا رہے ہیں. یہ آپ نے خود سوچنا ہے, یہ میں نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے برباد کر رہے ہیں اس کلیسیا کو جو خدا نے ہمیں بدن دیا ہے. سو میرے عزیزو, سوچنے کی بات, خدا اس جگہ پر کہتا ہے کہ میں وفادار ہوں. خدا کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ صبح سویرے اٹھ کر تمہارے ساتھ وفاداری کرتا ہوں, اور وہ چھوٹی موٹی وفاداری نہیں, عظیم وفاداری ہے. لیکن میرے عزیزو, ہم اپنے کاموں پر غور کرنا, ہم چاہتے ہیں صرف پیسہ آ جائے اور مکان آ جائے اور گڈی آ جائے تے ساڈے کول بڑا سارا بینک بیلنس ہو, اور ہم کچھ نہیں چاہتے, اور کسی کے ساتھ ہمیں دشمنی کرنی پڑتی ہے تو ہم کر جائیں, بے شک وہ بھائی ہے, بہن ہے, بھائی کیا اس کو کہتے ہیں, ماں ہے, باپ ہے. ہم وفاداری کسی سے نہ دنیا سے کر رہے ہیں نہ خدا سے کر رہے ہیں. ہم اپنی لالچ میں جو ہے وہ بھرتے جا رہے ہیں. اور آگے اگر خدا کے کلام میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جو ہے یہ جو چیزیں ہیں متی کی انجیل میں, ابھی میں پڑھوں گا وہ جو خدا نے تمثیلوں میں بتائی ہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. آئیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں. حجی کی کتاب, اس کا پہلا باب اور اس کے بعد حجی, یہ صفحہ نمبر 1132 ہے. حجی نہیں, یہ وہ لائکی ہے, یہ حجی ہے. اچھا جی, خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے, میں اوپر سے پڑھ دوں اگر ٹائم. اچھا جی, لکھا ہے کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ انسانی فطرت ہے,
मेरे अंदर भी पाई जाती है। मुझे इब्लीस ने एक वक्त में बरगलाया है। इब्लीस पता क्या कहता है, तो यार तू ते कारी लेना है, तेनू ते पता है कि किवें निजात मिलनी है, तेनू ते पता है कि तेनू कि किस तरह तू रूह की बरकत पानी, किस तरह तू बरकत पा सकना, तू तो वैसे बड़ा ब्लैस बंदा है, तेनू ते जरूरत ही नहीं, तू जो मर्जी कीती जा, और खुदा तुझे पता है इस तरह बरकत मैंने ले लेनी है। हमको इब्लीस ने इस तरह बरगलाया हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। हम इब्लीस की चालाकियों को नहीं समझ रहे, खुदा के कलाम को नहीं हम सीख रहे, या उसको हम अंदर नहीं ले रहे। अगर लेते हैं तो वफादारी नहीं करते, अमल नहीं करते। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो है बड़ा खूबसूरत लिखा है, जो है कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है, कोई आम बंदा नहीं फरमाता, कि खुदा फरमाता है कि हमने अभी खुदा के घर की तमीर का वक्त नहीं आया, तब खुदावंद का कलाम हज्जी नबी पर नाजल हुआ। हम लोग यही समझते हैं लेकिन आया है वक्त, लेकिन खुदा का कलाम नाजल हुआ है। सुनो खुदा की फरमाना है, खुदा के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए ये लफ्ज जरा पढ़ सकते, रहने का वक्त है, यानी कि बहुत आला और जो है वो घरों में रहने का वक्त है, जब ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल फाज यूं फरमाता है, ये 5वीं आयत जो बड़ी बहुत अहम है, रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। हालेलुया। क्या किया? बोया तो बहुत सा है लेकिन काटा कम है। कौन फरमाता है? रब्बुल फाज फरमाता है। क्यों जो है आज हम अपने आप पर गौर नहीं करते, हम वफादार नहीं है, हम इसको तस्लीम भी नहीं करते कि हम वफादार नहीं है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी जो है हार्ड बातें हैं, थोड़ी सी सख्त हैं, लेकिन इसमें मैं भी शामिल हूँ। और मेरा ख्याल कि दुनिया का हर वो मसीही जो मसीह से मोहब्बत रखता है दिखावे की, ये बड़ा सख्त कलाम एक आईना है। मैं आपको बता दूं, हालेलुया। कलाम एक आईना है, जो हम देखते हैं तो हमको अपना चेहरा नजर आता है, लेकिन कुछ ते उस चेहरे नू देखना पसंद करते ने, कि कुछ उस चेहरे को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि खुदा ने तो सारा कुछ बनाना है ना। खुदा ने तो हर एक चीज की जो है उसकी तफसीर करनी है, खुदा का कलाम करता है। हम जिस जगह पे गलत है वो गलत कहता है, लेकिन असी अपने आप को खुदा का कलाम कहता है, लेकिन असी कहने असी सही है, हम गलत हैं ही नहीं, हम हो ही नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं कि खुदा का कलाम जो है वो बरहक, ये आप सब जानते हैं, लेकिन हम उस पर वफादारी नहीं कर रहे, जो कि हमें करनी चाहिए। खुदा फरमाता है इस जगह पर कि तुम जो बोते हो वो बोते तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन खुदा कहता है बहुत सा बोया, लेकिन उसका काटा जो है वो थोड़ा है। आपको पता है, आपकी सारी हम सब रफ्शें देखते हैं दुनिया में, हम जो है दयकियां भी दे रहे होते हैं, हम सारा कुछ दे रहे होते हैं, हम जो है शुक्रगुजारियां कर रहे होते हैं, हम जो है खुदा के हजूर जो है गरीबों को, यतीमों का ख्याल भी रख रहे होते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे
अंदर गलत होती हैं उस पर हम गौर नहीं करते, और वो छोटी छोटी कोताहियाँ होती हैं, वो छोटी छोटी कोताहियाँ। एक मैंने मैरनन की बुक पढ़ी थी, छोटी छोटी कोताहियाँ, उसमें लिखा था कि वो जो छोटी छोटी कोताहियाँ हैं वो नसूर बन जाती है। एक बंदे को एक ही जगह पे चोट मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ, पहले वो दर्द होएगी, फिर थोड़ा सा जख्म बनेगा, फिर उसके बाद बड़ा जख्म बनेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नसूर बन जाएगा। उनका दिल सख्त हो जाएगा। देखते हैं ना, एक ही जख्म जब जो है उस पर चोट लगती जाए वो मांस सख्त हो जाता है, फिर हम सुनना पसंद नहीं करते, तो नहीं हो असी तो सही है गए हैं। मेडिकली तौर पे भी कहते हैं कि 40 साल तक अगर एक शख्स एक काम करता रहे ना, तो वो अपने आप को कहता है कि ये काम दुनिया का सबसे बेस्ट है, बेशक वो गलत हो, वो नशे की लत क्यों ना हो। ये मेडिकली तौर पे भी वो कहा जाता है कि 40 साल तक एक शख्स एक काम करता रहेगा, तो वो कहेगा वो गलत भी है तो उसको सही कहेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है। हाँ जी, उसकी आदत बन जाती है, उसको कोई भी कहे वो लड़ना शुरू कर देगा, जा तू कौन होना। सो खुदा इसलिए कहता है हम दे सब कुछ रहे हैं, और ये बड़ा सोचने की बात है, लेकिन काट कम रहे हैं। क्यों? हमें पूरा देखें, खुदा वफादार शुरू से है। अभी हमने पढ़ा है नोहा की किताब में, खुदा आज भी उन हैकलों को तमीर करना चाहता है, जो बदन जो खुदा ने हैकल को जो है दिए हुए हैं, खुदा उनको आज भी तमीर करना चाहता है, खुदा उनको आज भी मरम्मत करना चाहता है। उस वक्त जब खुदा को कहा, खुदा के बंदे ने, तो खुदा ने कहा कि वक्त नहीं, खुदा ने उनको और वक्त दिया ताकि ये सीखें। फिर एक वक्त आया, खुदा ने अपने बंदा पर नाज़िल हुआ, और खुदा ने उन्हें सारा आईना दिखा दिया कि ये शख्स जो है, ये कौम जो है, ये अपनी अपनी गलतियां और खताएं जो है, नाफरमानियां जो है, सरकशी जो है, उसको तस्लीम ही नहीं कर रही। तो फिर खुदा को गैर कौमों के सुपुर्द उनको करना पड़ा। खुदा तो वफादार है, लेकिन खुदा उनको सिखा भी रहा है। खुदा आज भी हमें भी सिखाना चाहता है। जब हम मुश्किल में होते हैं ना, परेशानी में होते हैं, बीमारियों में चले जाते हैं, तो फिर खुदा हमें कुछ सिखाना चाह रहा होता है। फिर खुदा हमें ये चाहता है कि हम खुदा के वफादार बन जाएं। इसलिए खुदा हम पर जो है ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये बीमारियां हम पर तारी होती हैं, ताकि हम खुदा के वफादार बन जाएं। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर असुदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुरा खुदार थैली में जमा करता है। हालेलुया। सुरागदार, थैंक यू। सुरागदार जो है हथेली में जमा करता है। सो मेरे अजीजों, खुदा जो है साफ साफ इस जगह पर लिख रहा है, बता रहा है कि हम अपने जो है लालच में, अपनी चीजों में, अपनी ख्वाहिशों में हम जो है वो पड़े हुए हैं। लेकिन जो है हम
अच्छे अच्छे कपड़े वो और ये सारी चीजें जो हम मैं पहले भी डिस्कस कर चुका। तो वो क्या है, यहाँ पे मजदूर की सुरागदार थैली में जमा करते हैं, यानी कि वो जो हम चीज कर रहे हैं उसके अंदर एक सुराग बना हुआ है। वो जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, वो जो माल जमा करते हैं जमीन पर, वो जमीन में फना हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं। और खुदा जो है हमसे ये नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। खुदा ने इंसान से मोहब्बत रखी है, खुदा इंसान से प्यार करता है और खुदा उन्हें बचाना चाहता है। हालेलुया। आए एक मेरे साथ ज़बूर 37 निकालें और उसकी तीन आयात मैं आपके सामने रखूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और उस नेकी कर। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह, उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। तो खुदा हमें ये कह रहा है, खुदा का बंदा जो है कहता है किसमें मसरूर है? खुदा में। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप जो है खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो चीज आप बो रहे हैं, जो बीज आप बोते हैं उसका फल पूरा मिले, तो फिर मेरे अजीजों अपने आप को वफादार कर लें, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें और अपनी छोटी छोटी कुताइयां जो हैं उन पर गौर करें। ज़बूर 37 उसकी 3 और 4 आया। और खुदा जो है वो कहता है कि किस पर तवक्कल कर? खुदा पर तवक्कल कर, तो सब चीजें जो हैं खुदा जो है तुम्हें दे देगा। उसी में मसरूर रहो, हर काम में देखो कि ये मसीह के जो है कलाम में जो लिखा है, मैं उससे बरतरफ तो नहीं हूं, मैं उससे हट तो नहीं गया। मेरे अजीजों, फिर खुदा आपको बरकत दे देगा, फिर खुदा आपकी जिंदगी में मोजाद करेगा। मोजा होना कोई बड़ी गल नहीं। मैं तुहानू दस, अगर जी असी समझिए ना, अपने आप पे फखर करिए कि असी बड़ियां दुआवां करने आ ते बहुत बड़ा मोजा हो जाता है। ये खुदा अपनी इज्जत के लिए करता है, अपने नाम की खातर करता है। ये खुदा की जो है रहमत है, खुदा का रहम है, खुदा का फजल है। लेकिन ये बातों को हमें सीखने की जरूरत है कि हम इन्हीं बातों में आके अबलीस हमें वरगला लेता है। वो तेरे च बरकत ही बड़ी है, वो तेरे। इसी तरह अबलीस को जो है, जो आपको पता है कि लूसीफर जो है इसी वजह से वो नीचे फेंका गया था। घमंड आ गया था उसमें, मगरूरी आ गई थी उसमें। मैं इन बातों से आज आपको मैसेज देता हूं कि इन बातों से गुरेज करें। अगर आपके वसीला से खुदा किसी को शिफा देता है तो कहें खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद तेरी तमजीद हो, खुदावंद मैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ, खुदावंद मैं कुछ नहीं, और रोना शुरू कर दे, अपनी एक अलहदा दुआ में बैठे। जब आप कोई मौजज़ा देखते हैं, आपके वसीला से हुआ होता है, अपनी पर्सनल दुआ में जाएं। ये मेरे एक एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा हूं। जवानी के अयाम में मैंने ऐसा किया है, और जब आप ऐसा करेंगे फिर अपने अंदर बरकतें देखिएगा कैसी। मैंने अपने साथ फरिश्तों को चलते हुए महसूस किया है।
मैं आपको झूठी बात नहीं, खुदा के हजूर खड़ा हूँ, जो उस वक्त जितना वक्त मैंने खुदा को दिया था, खुदा ने उसके मुताबिक मुझे बरकत बख्शी थी। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा दे के वो लेता नहीं है। मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैंने उस पर गलबा पाना है। मैंने उनको आज जो है, मैं चाहूँगा कि हम सब अपनी अपनी उन खताओं को याद करें, अपनी अपनी उन गलतियों को याद करें और पूरे दिल से, क्योंकि खुदा हमारे साथ वफादार था, खुदा वफादार है और खुदा वफादार रहेगा। हमारी कलीसिया जो टूटी पड़ी है, अद्धियां दोबारा हुईयां ते अद्धियां हुईयां ही कोई नहीं। इस पर गौर करें, अपनी हालत पर गौर करें। ये फिक्र करने का जो है ये लम्हा है, ये वक्त जो है ये फिक्र करने का है, क्योंकि खुदावंद की आमद जल्द है। हालेलुया। सो इसी तरह जो है मैं एक और आयात आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं, वक्त जो है बहुत कम है। सो ये कुछ जो है तमसीलें खुदा ने कही हैं, तमसीलों में खुदा ने कलाम किया है, और ये आपने पहले भी सुना होगा, और इसको मैं कोशिश करूंगा पढ़ने की सिर्फ, ठीक है। और ये आप इन पर बातों पर गौर कीजिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, पहली जो है आज से पढ़ूंगा, ये चंद आयात हैं, कोई 8-9। ये मैंने मत्ती 13 बाब मैंने आपको बताया है, मत्ती 13 बाब उसकी पहली आयत, ठीक है। मत्ती 13 बाब उसकी पहली आयत है, लिखा है, उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा, और सारी भीड़ किनारों पर खड़ी रही, और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही। मेन चीज अब जो मैं पढ़ने लगा हूँ वो ये है, जो तमसीलें हैं, जो खुदा ने दूसरे लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए खुदा ने दी हैं। और लिखा है, देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिर गए, और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, जहां उनको बहुत मट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए, और कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। खुदावंद जो है इस कलाम पर बरकत दे। इस कलाम पे मैं कभी फिर जो है इसको मैं मजीद वाज़िया करूँगा। खुदा जो है, जो जब भीड़ लग जाती है तो उसमें सारे शिफा नहीं पा लेते। शिफा वही पाते हैं जो ईमान रखते हैं और ईमान के साथ साथ अमल में लाते हैं, अमल में लाते हैं, कुछ सीखते हैं कि आज मैंने ये सीखा है, मैंने अपनी जिंदगी में ये अमल करना है, फिर खुदा जो है आपको बरकत देता है। बीज तो ये हमने पढ़ लिया कि खुदा का कलाम गिरा, बीज बोया गया और वो अलग अलग ज़मीनों पर गिर गया। अब ये जो झाड़ियाँ हैं, ये जो सख्त ज़मीन है, इनको मैं सारा ये मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो है वो आपने इसको देखना है, कौन सी पत्थर मेरे ऊपर रखा हुआ है जो कलाम को जड़ नहीं पकड़ने दे रहा, जो मेरे बीज को उगने नहीं दे रहा, जो मेरे फल को बढ़ने नहीं दे रहा। ये अब आपने गौर करना है, इन चीज़ों को आपने देखना है। खुदा ने नहीं आन के देखना, खुदा ने तुहानू
हर तरह का काम मेरे वास्ते तुहाडे लिए कर छड्या। खुदा ने अपने नबियों को भेज दिया, खुदा ने अपने पैगंबरों को भेज दिया, खुदा ना चीज़ों को इस्तेमाल करके खुदा ने आपको भेज दिया, आपके पास भेज दिया। तो मेरे अजीजों, अब बाकी काम तो हमारा भी तो कुछ है ना। अब हमने भी तो कुछ मेहनत करनी है ना। अगर हम यही चाहें कि असी सुखी दे मिल माया बस वो बैठे रहिए कि सानू इस तरह थाली च मिल जाए, मेरे अजीजों ऐसा तो मसीह ने भी नहीं बताया। मसीह भी हमें ये नमूना दे के गए हैं कि हमें दुख उठाना है, हमें मुसीबत से गुजरना है और फिर हम जो है खुदा से वफादार होना है, तो हम बरकत पाएंगे। तो हम, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे साथ वफादार था, वफादार है और वफादार रहेगा। सो मैं आखिरी एक हवाला आपके सामने रखूंगा, रोमियो 3 बाब और उसकी 3 आयत, तीसरी आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 3 बाब और उसकी तीसरी आयत से, अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातल कर सकती है? इतना जो है खूबसूरत कलाम है। किसी की बेवफाई खुदा की वफादारी को बातल नहीं कर सकती। खुदा शुरू से वफादार था, शुरू से वफादार है और वफादार रहेगा। खुदा जो है वो हमेशा तक, इंसान की बेवफाई जो है, हम बेवफा हो जाते हैं ना, हम वफादार नहीं रहते, हम अपनी इंसानी कामों में, इंसानी फितरत में हम जो है वो पड़े रहते हैं, इंसानी ख्वाहिशात में पड़े रहते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि अगर तू बेवफा हो गए तो मैं बेवफा नहीं। पूरी इसराइल को खुदा ने कहाँ कहाँ छोड़ा और किस मकसद के लिए आप सब जानते हैं, आप सबको पता है। लेकिन खुदा ने आके फिर भी हैकल को तमीर किया, खुदा ने हैकल को बनाया, खुदा ने उसको जोड़ा और खुदा ने अपने लोगों को उन्हीं में से खड़ा करके खुदा ने तमीर करवाई। हालेलुया। खुदा जो है क्या अफसोस है कि जिन्होंने वसीले खराब हुई है, अफसोस होना दे। और लिखा है हरगिज नहीं बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा चुराचा। लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदमा में फतह पाए। हालेलुया। ये कलाम जो आज हमने सीखा, खुदा का कलाम रोमियो पौलुस रसूल के नाम जो खत लिखता है, वो कहता है कि हमने अपना मुकदमा खुदा के सामने रखें और खुदा आपको जो है वो उस वसीले से खुदा बरकत बख्शे। अब मुकदमा जो रखना है ये आपने खुद देखना है कि असी केड़ा रखना है, सही वाला रखना है या गलत वाला। हाँ जी, अपनी रवशें वो देखनी है जो कि बुरी हैं, खुदा के आगे रखें, खुदा से कहें हर इंसान कमज़ोर है, कताकार है, गुनाहगार है। खुदा मुआफ करने के लिए खुदा ने किसको भेजा? अपने प्यारे बेटे यसु नासरी को भेजा, ताकि उसके वसीला से हम नजात पाएं। तो मेरे अजीजों, खुदा आज हमारी उन हैकलों को तमीर करना चाहता है जो हमने अपनी ख्वाहिशों से, अपनी जो है वो नसानी जो ख्वाहिशात हैं और लालच और दूसरे गुनाह से, खताकारी से हमने ढाई हुई है, खुदा आज उनको मरम्मत करना चाहता है। खुदा आज नूह के वसीला से जो है, खुदा अपने नबियों से के वसीला से, पैगंबरों के वसीला से खुदा ने आज जो हमारे पास जो कलाम रखा है, जो नसीहत रखी है, आज आप देखें अपनी अपनी हैकल को।
अपने अपने बदन को, अपने अपनी नवज को, ताकि खुदा में आप बढ़ते जाएं, खुदा में आप कुव्वत पाते जाएं, और जो बीज बोए वो क्या हो, फलदार हो, और बहुत सा फलदार हो। हालेलुया। इसी खुदा तरह हम दूसरा ये भी याद रखना, क्योंकि ਜਦੋਂ हम बेवफा हो जाने हैं तो फिर भी वफादार रहना है। हाँ जी, तो यही आज हमने सीखा कि खुदा जो है वो वफादार खुदा है। हमें वफादार बनने की ज़रूरत है, हमें वफादार होने की ज़रूरत है। अभी हमने रोमियो का जो खत पढ़ा उसमें भी यही है कि हमें वफादार बनना है। हालेलुया। अगर हम वफादार बनेंगे तो हमारा बीज थोड़ा नहीं, हमारा फल बहुत सा होगा। तो फिक्र करें, आपका फल गिर रहा है, आपकी हथेली में सुराग हो रखे हैं, उन पर गौर करें, उनको देखें कि वो कौन से जो सुराग हैं जिनको मैंने कलाम के वसीला से बंद करना। हालेलुया। बाकी खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद आपके साथ। आमीन। सो मैं चाहूँगा कि खुदावंद के कलाम की